the genuine Holy Spirit of God upon a person, and yet they are false. जी हाँ जनाब, ऐसे शख्स पर खुदा के असली रूह का मसा है, लेकिन तो भी वो झूठे हैं। Now listen close and see what he said. अब गौर से सुनिए और देखें कि यीशु ने क्या कहा। They shall show signs and wonders, insomuch that it would deceive the very elected, if it were possible. वो निशान और ऐसे अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। And they are anointed with the genuine Holy Spirit. वो असली रूहुल कुद्स के मसा के साथ मामूर हैं। I know this sounds very foolish, but we're going to take time and explain it by the word. That's absolutely thus saith the Lord, the truth. मैं जानता हूँ कि ये बात अहमकाना लगती है, लेकिन हम वक्त ले रहे हैं ताकि इसे कलाम से बयान करें कि ये मुतलिक तौर पर खुदावंद यूं फरमाता है कि सच्चाई है। Now, let's turn in our Bibles just a minute to Matthew, the 5th chapter, and begin with the 45th verse. आइए एक मिनट के लिए अपनी अपनी बाइबल में चलें। मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 45वीं आयत से शुरू करते हैं। And see now as we read for a few moments on these scriptures, और अब इस हवाले को पढ़ते और कुछ लम्हात के लिए गौर करते हैं। and then if we get to here, well, we'll give you. और फिर जो बातें हम यहाँ बयान करना चाहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। So if we fail to read all of them, then you get your Bible and also you can read them as we leave here and you go home. पर तो भी इस तरह अगर इन सब को पढ़ने से कासी रहे तो अपनी बाइबल को लें और जब हम इस जगह से रुखसत हों तो आप घर जाकर इन्हें जरूर पढ़ें। And you read what the Bible says about it. और आप इन सब को अपनी बाइबल में से पढ़ें कि बाइबल इसके मुतल्लिक क्या कहती है। Now, to take our time to get a basic fact, because I'm making a statement here that's astounding. अब मैं चाहता हूँ कि एक बुनियादी हकीकत के लिए वक्त निकाल लें, क्योंकि मैं यहाँ एक हक्का बक्का कर देने वाली बात कहने जा रहा हूँ। How can the Holy Spirit anoint a false teacher? एक झूठे उस्ताद को रूहुल कुद्स किस तरह मसा कर सकता है? But that's what Jesus said would happen. लेकिन जो यीशु ने कहा है वो जरूर पूरा होगा। Now, Matthew, the 5th chapter, the 45th verse. Let's read now. अब मत्ती 5वें बाब की 45वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। Let's begin a little behind it, the 44th. बल्कि आइए इससे भी थोड़ा पीछे 44वीं आयत से शुरू करते हैं। But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you. लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुम पर लान तान करते हैं उनके लिए बरकत चाहो, जो तुमसे अदावत रखते हैं उनके साथ भलाई करो। Pray for them that despitefully use you and persecute you, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, that ye may be the children of your Father which is in heaven. ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। For he maketh his sun to rise on the evil and the good, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, and sendeth rain on the just and the unjust. और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। The rain comes upon the evil as same as the good. बारिश बदों पर भी उसी तरह बरसती है जैसे नेकों पर। Now, to follow this up to another prophecy pertaining to this, may we turn now to Hebrews, the 6th chapter. अब इसी से मुतल्लक एक नबूवत को इसके साथ मिलाने के लिए हम अब्रानियों 6 बाब में पढ़ सकते हैं। For the next follow-up verse on this, where Paul, bringing back to mind the same thing that Jesus said. जहाँ पालूस इसी बात को जहन में ला रहा है जो यीशु ने कही थी। Paul speaking now. अब पालूस कह रहा है, While you're hunting it, you out in the broadcast, get your Bibles near you and a piece of paper, and look up this now. जब आप इसके मुतलाशी हैं और जो लोग बाहर रेडियो पर सुन रहे हैं, अपनी बाइबल और कागज का एक हिस्सा अपने करीब रखें और अब इसको देखें। Hebrews, the 6th chapter, Paul writing to the Hebrews, showing them the shadows and the types.
अब्रानियों 6 बाब। पालूस अब्रानियों को लिखते हुए उन्हें नकूश और नमूने दिखाता है bring them from under Judaism into Christianity, और उन्हें यहूदियत से मसीहत में लाता है, showing them how all the old things just foreshadowed the things that was to come. वो उन्हें दिखाता है कि तमाम पुरानी चीजें आने वाली चीजों का अक्स थी। Paul speaking now, Hebrews 6. अब पालूस अब्रानियों 6 में कहता है, Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, C-H-R-I-S-T, singular, बस आओ हम मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर, CHRIST, यहाँ लफ्ज मसीह वाहिद है। let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance, dead works, and of faith towards God. कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने की और खुदा पर ईमान लाने की, Of doctrine, of baptism, and of laying on of hands, on of resurrection of the dead, and of eternal judgment. और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की बुनियाद दोबारा ना डालें। And this will we do if God permits. और खुदा ने चाहा तो हम यही करेंगे, For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Spirit. क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूहुल कुद्स में शरीक हो चुके। I want to call your attention just a minute. You notice that's gift and not gifts. मैं 1 मिनट के लिए आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूँ। क्या आपने गौर किया कि यहाँ लफ्ज बख्शिश इस्तेमाल हुआ है, ना कि लफ्ज बख्शिशों। Partakers are not the heavenly gifts, but the heavenly gift. Singer. क्या लफ्ज आसमानी बख्शिशों इस्तेमाल हुआ है, बल्कि आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके, जो कि वाहिद लफ्ज है। Christ, singular. Gift, singular. लफ्ज मसीह भी वाहिद है और लफ्ज बख्शिश भी वाहिद है। Heavenly gift and made partakers of the Holy Spirit आसमानी बख्शिश और रूहुल कुद्स में शरीक हो गए and have tasted of the Word of God. और खुदा के उम्दा कलाम का मजा ले चुके। Tasted of what? किस चीज का मजा? The Word of God and the power of the world to come. खुदा के उम्दा कलाम का और आइंदा जहान की कुव्वतों का मजा ले चुके। If they shall fall away to renew themselves again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. अगर वो बरगश्ता हो जाएं, तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो अपनी तरफ से खुदा के बेटे को दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। For, listen, the earth drinketh in the rain that cometh off upon it. क्योंकि गौर से सुनिए, जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो बार बार उस पर होती है, To bring forth herbs, meat, for them by whom it is dressed receiveth blessings from God. और उनके लिए कारआमद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। But that which beareth thorns, briars, is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. और अगर झाड़ियां और ऊंट कटारे उगाती है, तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो, और उसका अंजाम जलाया जाना है। Now compare that with Matthew 5:24 again. अब इसका मुवाजना मत्ती 5:24 से दोबारा करें। Notice, Jesus said the rain and the sun comes upon the earth, that God sends it to prepare the food and the things for the peoples of the earth. गौर कीजिए, यीशु ने कहा कि धूप और बारिश इसलिए जमीन पर आती है और खुदा इसलिए भेजता है कि जमीन पर के रहने वाले लोगों के लिए खुराक और दूसरी चीजें पैदा की जाएं। And the rain is sent for the food, the herbs. बारिश गल्ले और सब्जी के लिए भेजी जाती है, But the terriers, weeds being in the field receive the same thing. लेकिन ऊंट कटारे और सरकंडे जो मैदानों में उगते हैं, वो भी इसी बारिश का पानी हासिल करते हैं। The same
same rain that makes the wheat grow is the same rain that makes the weeds grow. जिस बारिश से गेहूं परवरिश पाती है, बिल्कुल उसी से कड़वे दाने भी परवरिश पाते हैं। How I had such a lesson on that one time when I first met the Pentecostal people. इस पर मुझे कैसे सबक हासिल हुआ जब मैं पहली बार पेंतीकोस्टल लोगों से मिला, And it was a great lesson to me. और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था। I've seen two men, one never heard speaking in tongues before. मैंने दो आदमी देखे, एक इससे पहले मैंने कभी किसी को गैर जुबानों में बोलते नहीं सुना था। One spoke in tongues, the other interpreted, vice versa. एक गैर जुबान बोलता और दूसरा उसका तर्जमा करता था, और इसी तरह फिर दूसरा गैर जुबान बोलता और पहला उसका तर्जमा करता था। And would tell the truth. Say that there's many in here should repent tonight. और वो सच बताते थे। वो कहते थे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज रात तौबा करने की जरूरत है। There's women and men both. उनमें मर्द और औरतें दोनों शामिल थे। And people would raise up, go to the altar. और लोग उठते और मज़बा पर जाते थे। I thought, how glorious. मैंने सोचा कैसी जलाली बात है। And then, with the little gift of the Holy Spirit, I talked to those men, just, how in discernment, just a little way to find out. और फिर रूह को उसकी एक छोटी सी नेमत के साथ मैंने उन दोनों आदमियों से बातें की। आप जानते हैं कैसे, सिर्फ थोड़ी सी गुफ्तगू के साथ मैंने उन्हें परख लिया। And one of them was a genuine Christian. And he was a real servant of Christ. And the other one was a hypocrite. और उनमें से एक हकीकी मसीही था। वो मसीह का हकीकी खादम था, लेकिन दूसरा रयाकार था। And one of them, the one that was a hypocrite, was living with a black-headed woman running around with a blonde and had children by her. और उनमें से एक जो रयाकार था, वो एक स्याह बालों वाली और गोरी रंगत और नीली आंखों वाली औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा था, और उसमें से उसके बच्चे भी थे। Right there in the vision, couldn't be denied. ठीक है, ये चीज एक रोया में दिखाई गई और इसका इनकार नहीं किया जा सकता। And I spoke to him about it. और मैंने इस बात के मुताल्लिक उसे बताया। He looked at me and walked around the building. उसने मेरी तरफ देखा और इमारत से बाहर निकल गया। Now I was confused, sure enough. और उस वक्त मैं बड़ी उलझन का शिकार हो गया, I thought it come into angels. Then I wondered if it was among devils. क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं फरिश्तों के दरमियान आ गया हूँ, और अब फिक्रमंद था कहीं शयातीन के दरमियान तो नहीं आ गया। How could this be? I could not understand it. ये कैसे हो सकता था, मैं उसे समझ नहीं सका। And for years I kept my hands off of it. और बहुत सालों तक मैंने अपने हाथ उससे अलग रखे। So one day, where George Smith, the boy goes with my daughter, we went yesterday up to the old mill place where I go to pray. और हत्ता कि एक दिन जॉर्ज स्मिथ यानी वो लड़का जो मेरी बेटी के साथ जाता है, हम कल उस कदीम मिल की जगह गए जहां मैं दुआ करने के लिए जाता हूं। After being in there a couple days, the Holy Spirit brought this scripture back to me. और 2 दिन वहां ठहरने के बाद रूह कुछ कलाम के इस हिस्से को मेरी तरफ लाया। For the rain cometh off upon the earth to dress it with herbs, but thorns and thistles live by that same rain, and whose end is to be burned. क्योंकि बारिश अक्सर जमीन पर पड़ती है और इसमें सब्जियां पैदा करती है, लेकिन झाड़ियां और ऊंट कटारे भी इसी बारिश से जिंदगी हासिल करते हैं, लेकिन उनका अंजाम जलाया जाना है। Living by the same life-giving resource of God. खुदा के उसी जिंदगी देने वाले जराए से जिंदगी हासिल कर रहे हैं। Then I understood that Jesus said, by their fruits they are known. फिर मैं इस बात का मतलब भी समझ गया जो यीशु ने कही थी कि वो अपने फलों से पहचाने जाते हैं। Now, therefore, the rain dropping down upon the natural vegetation of the earth is a type of the spiritual rain which gives eternal life dropping down upon the church. अब इसलिए कि बारिश जमीन की कुदरती नबातात पर गिरती है, ये उस रूहानी बारिश की तमसील है जो कलीसिया पर बरसती और उसे हमेशा की जिंदगी देती है। For we call it the former rain and the latter rain. इसलिए हम इसे पहली और पिछली बारिश कहते हैं। It's a rain pouring out of God's Spirit upon His church.
और ये बारिश खुदा के रूह से निकलती और उसकी कलीसिया पर गिरती है। Notice, it's a very strange thing here. गौर कीजिए, ये बड़ी अजीब बात है। See, when them seed went in the ground, however they got there, they were thorns to begin with. देखें, जब वो बीज जमीन में चले गए तो वो वहां मिल गए, तो भी उनका आगाज कांटे होता है। But there the wheat that went in the ground and the herbs were herbs to begin with. लेकिन गंदुम का बीज भी जमीन में गया और जड़ी बूटियों का आगाज जड़ी बूटियों के साथ हुआ। And each herb producing itself over again showed that it was in the original beginning. और हर एक जड़ी बूटी एक बार फिर अपने आप को पैदा कर रही है, जो जाहिर करता है कि इसका असल आगाज क्या था। And they will deceive the elected if it were possible. अगर मुमकिन हो तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें, Those are getting the same rain, same blessing, showing the same signs, same wonders. See? क्योंकि उनको वही बारिश, वही बरकतें हासिल हो रही हैं और उनसे वही निशान और अजीब काम जाहिर होते हैं। समझे? They will deceive or shall deceive the elected if it were possible. अगर मुमकिन हुआ तो वो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। Now, a thorn cannot help being a thorn, and neither can wheat help being a wheat. अब एक कांटा खुद को कांटा बनने से नहीं रोक सकता और ना ही गेहूं अपने आप को गेहूं बनने से रोक सकता है। It's what the creator of each one determined at the beginning. ये वही है जिसका इरादा इन सब के खालिक ने इब्तदा में किया था। That's the elected. वो मुंतखब हैं, The same rain, एक ही बारिश के लिए। the sunrises of a morning is spreads across the earth, as it had this earthen day that we live. सूरज सुबह को तुलू होता है और जमीन पर अपनी रोशनी को फैलाता है, जैसा कि ये इस जमीन पर आज के दिन है जिसमें हम रहते हैं। And the sun, same sun, it rises in the east is the same sun it sets in the west. जो सूरज मशरिक से तुलू होता है, बिल्कुल वही सूरज मगरिब में गुरूब होता है। And that sun is sent to ripen the grain upon the earth, which our bodies are made from. जिस मिट्टी से हमारे बदन बने हैं, उसी मिट्टी में गल्ले को पकाने के लिए सूरज को भेजा जाता है। We are living by dead substance. That's the only way you can live. हम किसी चीज के मरने के वसीले जिंदा रह रहे हैं। जिंदा रहने का वाहिद यही तरीका है। And if something has to die every day, so you live. Natural. और हर रोज किसी चीज को मरना पड़ता है ताकि आप जिस्मानी तौर पर जिंदा रह सकें। Then isn't it true that if your body has to live by dead substance for natural life, तो क्या फिर ये सच नहीं है कि जब आपके जिस्मानी तौर पर जिंदा रहने के लिए किसी को मरना पड़ता है, then you've got to have something die spiritually to save your spiritual life. उसी तरह आपको रूहानी लिहाज से जिंदा रखने के लिए किसी चीज को रूहानी तौर पर भी मरना पड़ता है। And God became material, flesh, and died that we might live. और खुदा ने मादी जिस्म इख्तियार किया और मरा ताकि हम जिंदा रह सकें। There's no church, no other thing in the world can save you but God. खुदा के अलावा कोई कलीसिया या कोई और चीज आपको बचा नहीं सकती। That's the only thing that they live by. सिर्फ यही एक चीज है जिससे जिंदा रहा जा सकता है। Now, run the scriptures. अब कलाम में देखें, Jesus is the Word. यीशु कलाम है। In the beginning was the Word, and the Word was made flesh and dwelt among us. इब्तदा में कलाम था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। In the beginning was the Word, and the Word is with God. इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था And the Word was made flesh and dwelt among us. और कलाम मुजस्सम हुआ और वही हमारे दरमियान रहा। And man shall not live by bread alone, but the physical, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा जिस्मानी जिंदगी के लिए, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। And you see, we live by the Word.
and that is God. यूं आपने देखा, हम कलाम से जिंदा रहते हैं और कलाम खुदा है। Now, the sun comes across and rightens the grain. अब सूरज निकलता है और गल्ला को पकाता है। Now, it cannot ripen it all at once. अब ये उसे एकदम नहीं पका सकता। As it goes on maturing, it constantly ripens until it comes to a full ear. जो जो वो बलूगत की तरफ बढ़ता है तो ये पकता जाता है और बिल आखिर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। So is it today with the church. और इसी तरह आज यही सूरत कलीसिया के साथ है। It started in its infancy back in the dark age where it's under the ground. तारीख दौर में जब ये जमीन के अंदर थी तो ये इसका बचपन का आगाज था। It's grown now into maturity. अब ये बलूगत की उम्र को पहुंच गई है। And we can see it perfectly how that God through nature, always, you cannot disturb nature. और हम इसे कामलियत के साथ देख सकते हैं। खुदा ने हमेशा फितरती नमूनों के जरिए सिखाया और आप फितरत में खलल नहीं डाल सकते। That's what's the matter today. आज भी यही सूरत हाल है। We're flying bombs and out there in that ocean, breaking it and busting it around with atomic bombs. हम बम उड़ाते और समुद्रों में फेंकते हैं और हम इस फितरत को एटमी बम्बों से तोड़ रहे हैं और इसका सीना फाड़ रहे हैं। You're just breaking more of that dirt off all the time, dropping into it. जितनी ज्यादा मिट्टी को आप खोद रहे हैं उतना ही आप इसके अंदर गिरते जा रहे हैं। You cut down the trees, storms will take you. आप दरख्तों को काट रहे हैं, आपको तूफान घेर लेंगे। Dam up the river, it'll overflow. आप दरियाओं पर बंद बांध रहे हैं, इनमें सैलाब आएंगे। You've got to find God's way of doing things and stay in it. आपको चाहिए खुदा के काम करने के तरीके को मालूम करें और उसके साथ खड़े रहें। We've denominated people in the churches and organizations. Look what we got. हमने कलीसियाओं और तंजीमों में लोगों को मुनज्जम कर रखा है। देखें इससे क्या हासिल हुआ। Stay in God's provided way of it. इसलिए सिर्फ खुदा के मुहैया करदा तरीके के साथ खड़े रहें। But you see, He sends the rain. Back to our subject on the just and the unjust. लेकिन आप देखें, आए अपने मजमून पर वापस चलते हैं। वो अपनी बारिश रास्तबाजों और नाराजतों पर बरसाता है। Jesus tells you here now in Matthew 24, it would be a sign at the end time. मत्ती 24 में यीशु ने आपको बताया कि ये आखिरी वक्त का निशान होगा। Now, if this sign is only to be known at the end time, then it'll have to be after the opening of those seals. अब अगर ये निशान आखिरी जमाने में ही इल्म में आएगा तो फिर इसे मोहरों के खुलने के बाद जाहिर हो जाना चाहिए। समझे? It's a sign of the end. ये आखिरत का निशान है। That would be when these things happens, it'll be at the end time. आखिरी दिनों में जब ये चीजें वाक़या होंगी तो ये जाहिर होगा। And it'll be a sign, now so the elected will not be confused. And these things, ये एक निशान होगा, इसलिए अब बरगजीदों को इन चीजों के मुतालिक उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। you see it? क्या आप समझ गए? Then it's got to be revealed. Exposed. फिर इसे मुनकशिफ और जाहिर होना चाहिए। Notice, both the wheat and the weeds live by the same anointing from heaven. गौर कीजिए, गेहूं और कड़वे दाने दोनों आसमान से एक ही मसा हासिल करके जिंदा रहते हैं। Both of them rejoice over it. दोनों इस पर खुशी का इजहार करते हैं। I remember this, referring back to this instance up there that day at the Greens Mill. उस दिन ग्रीन मिल की मिसाल के हवाला से मैं इसे याद रखता हूँ। I seen that vision come up. जब मैंने उस रोया को देखा, And there was a great earth and it had been all disced up. वहाँ बहुत सी जमीन थी और इस सारी जमीन में हल चलाया गया। There went a sower forth first. और पहले वहाँ एक बीज बोने वाला आया। I want to keep that before you. मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। Watch what goes forth first. Now what follows it? देखें कि पहले कौन जाता है और इसके बाद पीछे कौन आता है। And as this man with white on came forth around the earth sowing seed. जब ये पहला शख्स सफेद लिबास में मलबूस इस जमीन में बीज बोकर गया, Then
him come a man, dark clothes on, looked very sneaking, slipping along behind him, sowing weeds. और फिर इसके पीछे एक और शख्स स्याह लिबास पहने हुए आया। वो बहुत ही फरेबी दिखाई दे रहा था। वो पहले शख्स के पीछे चलते हुए कड़वे दाने बो गया। And as this taken place, then I seen both crops come up. जब ये हो गया तो फिर मैंने दोनों फसलों को उगते हुए देखा। And as they come up, one was wheat and the other was weed. और जब वो और ऊपर आई तो उनमें से एक गंदुम और दूसरे कड़वे दाने थे। And there come a drought. That one looked like both of them had their heads down just crying for rain. फिर खुश्क मौसम आया और तब बिल्कुल इस तरह दोनों ही ने सर झुका लिए, जिसका मतलब है बारिश के लिए रोना और चिल्लाना। Then there come a great cloud over the earth and it rained. फिर बहुत बड़ा बादल जमीन की तरफ आया और उससे बारिश हुई। And the wheat raised up and said, "Praise the Lord, praise the Lord." गंदुम ने अपना सर उठाया और कहा, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो। And the weeds raised up and hollered, "Praise the Lord, praise the Lord." कड़वे दानों ने भी अपना सर उठाया और बुलंद आवाज से कहा, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो। Same result. एक जैसे नताइज, Both of them perishing, both of them going away. दोनों खत्म हो रहे थे मगर फिर इकट्ठे बढ़ते गए। And then the wheat comes up and gets thirsty. फिर गंदुम ऊपर आई और उसे प्यास लगी। And because it was in the same field, the same garden, the same place, under the same spout. और चूंकि ये उसी खेत या बागीचे में उसी जगह पानी के एक ही मंबा के नीचे थी, There come up wheat and there come up tares by the very same thing. इसलिए गंदुम और कड़वे दाने दोनों एक जैसे हालात से दो चार हुए। Notice, the same anointing water brings forth the wheat, brings forth the weed. गौर करें, एक ही मसा का पानी गंदुम और कड़वे दाने दोनों को जिंदगी देता है। The same Holy Spirit that anoints the church, वही रूल कुश जो कलीसिया को मसा करता है, that gives them desire to save souls, that gives them power to perform miracles. It falls on the unjust the same as the just. और उनके अंदर रूहें बचाने की ख्वाहिश पैदा करता है, उन्हें मोजज़ात दिखाने की कुदरत देता है, बिल्कुल वही रास्तबाजों और नारास्तों पर नाजिल होता है। The very same Spirit. बिल्कुल एक ही रूह है। Now you can't make it another way and understand Matthew 24:24. अब आप मत्ती 24:24 को समझने के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार नहीं कर सकते। He said, "There shall rise false Christ, false anointed one." यीशु ने कहा, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, झूठे मगर मसाशुदा, Anointed with the genuine thing, but be false prophets of it, false teachers of it. उन्हें एक हकीकी चीज का मसा मिला, लेकिन उससे झूठे नबी और झूठे उस्ताद निकले। What would make a man want to be a false teacher? Something that's truth. अगर कोई शख्स किसी ऐसी चीज का झूठा उस्ताद बनना चाहे जो सच्चाई हो, तो उस शख्स का क्या बनेगा? Now we get down to the mark of the beast in a few minutes. You'll see its denomination. हमें चंद मिनटों में इससे हैवान का निशान हासिल होगा और आप देखेंगे कि ये तंजीम है। False teachers, false anointed, देखें, झूठे उस्ताद, झूठे ममसू, anointed Christ, but false teachers. मसाशुदा मसीह लेकिन झूठे उस्ताद। The only way you can see it. आप सिर्फ इसी तरीके से इसे समझ सकते हैं। Just like here, some time ago, I've quoted this. I might quote it because we're hooked up across the nation. कुछ अर्सा पहले की बात है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। मुझे अब भी जिक्र करना चाहिए क्योंकि हमें इस वक्त पूरे मुल्क में सुना जा रहा है। One day, I was talking to a friend of mine where this is coming in this morning in Arizona. एक दिन मैं अपने दोस्त से गुफ्तगू कर रहा था, वो आज सुबह एरिजोना में आ रहा है। And he had a citrus farm. उसका लीमुओं का एक खेत था। And he had a tree there, which was an orange tree that was bearing grapefruits and lemons, tangerines, tangelos. उसके यहाँ संतरे का एक दरख्त था जिस पर ग्रेपफ्रूट, लेमू, टेंगलो, टेंगराइन के फल लगे हुए थे। I
many different fruits there was on that one tree. और अब मुझे याद नहीं और कितनी किस्मों के फल लगे हुए थे। And I said to the man, I said, how is it? What kind of a tree is that? और मैंने उस आदमी से पूछा, मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है और ये किस किस्म का दरख्त है? He said, the tree itself is an orange tree. उसने जवाब दिया, ये दरख्त बजाते खुद संतरे का दरख्त है। I said, what has it got grapefruits on it? मैंने कहा, तो फिर इसमें ग्रेप फ्रूट कहाँ से आ गए? Why has it got lemons on it? और इसमें लीमू कहाँ से आ गए? He said, they're grafted into it. उसने कहा, ये सब इसमें पैवंद किए गए हैं। I said, I see. मैंने कहा, मैं समझ गया, ठीक है। Well, now, I said, now next year, when that tree comes forth with another crop of fruit, which they all ripen about the same time. अब मैंने कहा, अब अगले साल इस दरख्त पर दूसरा फल लगेगा, क्योंकि ये सब फल एक ही मौसम में पकते हैं। I said, then it will bring forth altogether oranges. If it's a navel orange tree, it'll bring forth the navel oranges, won't it, sir? मैंने कहा, तो फिर ये सारे का सारा संतरों पर ही मुश्तमिल होगा। अगरचे ये असलियत के लिहाज से संतरे का दरख्त है, तो इसमें असल संतरे लगेंगे। क्यों जनाब, क्या ऐसा ही होगा? He said, no, sir. उसने कहा, नहीं जनाब, Every grafted branch will bring forth of its kind. हर एक पैवंद शुदा शाख अपनी ही किस्म का फल पैदा करेगी। I said, you mean that lemon vine will bring forth a lemon out of that orange tree? मैंने कहा, आपका मतलब है कि एक लेमू की शाख इस संतरे के दरख्त में से लीमू पैदा करेगी? He said, yes, sir. उसने कहा, जी हाँ जनाब। Will the grapefruit bring forth a grapefruit out of that orange tree? क्या ग्रेपफ्रूट की शाख इस संतरे के दरख्त से ग्रेपफ्रूट पैदा करेगी? He said, yes, sir. उसने कहा, जी हाँ जनाब। That's the nature of the branch that's grafted into it. ये पैवंद शुदा शाख की फितरी खसूसियत है। I said, praise be to God. मैंने कहा, खुदा की तारीफ हो। He said, what do you mean? उसने कहा, क्या मतलब है आपका? I said, one more question. मैंने कहा, एक और सवाल है। Now, will that orange tree ever bring forth oranges again? क्या ये संतरे का दरख्त कभी दोबारा संतरे पैदा नहीं कर पाएगा? He said, when it puts forth another branch. उसने कहा, जब कभी ये कोई दूसरी शाख निकालेगा। When it puts forth another branch. Not when one's grafted into it. यानी उस वक़्त जब ये कोई और शाख पैदा करेगा, उस वक़्त नहीं जब शाख इसमें पैवंद की जाएगी। But they're all citrus fruit. And they live off of the citrus life that's in the citrus tree. मगर ये सब संतरे के खानदान के फल हैं और वो संतरे के दरख्त में मौजूद जिंदगी को हासिल करके ही जिंदा रह रहे हैं। I said, there you are. मैंने कहा, ये है आपकी हालत। The Methodists will bring forth Methodists every time. मेथोडिस्ट हर बार मेथोडिस्ट ही पैदा करेंगे। The Baptists will bring forth Baptists every time. बैप्टिस्ट हर बार बैप्टिस्ट ही पैदा करेंगे। The Catholic will bring forth Catholic every time. कैथलिक हर बार कैथलिक ही पैदा करेंगे। But the Church of the Living God will produce Christ from the root, the Word every time, if it ever puts forth another vine of its own. लेकिन जिंदा खुदा की कलीसिया जब ये जड़ से असल शाख पैदा करेगी तो हर बार मसीह यानी कलाम को जन्म देगी। Now, you can graft it in there, you see? अब आप इस चीज को पैवंद कर सकते हैं। आप समझ गए? Every grapefruit, lemon, tangelo, tangerine, whatever the citrus fruits they are, every one of them can live in that tree. हर ग्रेप फ्रूट, लीमू, टेंगलो, टेंगराइन और संतरे के खानदान के तमाम अरकान इस दरख्त पर जिंदा रह सकते हैं। But bearing false witness of the tree, living by the tree. लेकिन इससे जिंदगी हासिल करने के बावजूद फल इससे मुख्तलिफ पैदा करेंगे। You see it? क्या आप समझ गए? They are living and thriving on the genuine life that's in that tree. वो इस दरख्त के अंदर मौजूदा जिंदगी से जिंदगी और परवरिश पा रहे हैं। Now there's Matthew 24. अब यहाँ मत्ती 24 वाले Living by the same life. But they wasn't right at the beginning. उसी जिंदगी से जिंदा हैं,
लेकिन वो इब्तदा ही से दुरुस्त ना थे। They're bearing false witness of that tree. वो उस दरख्त की झूठी गवाही पेश कर रहे हैं। It's an orange tree, yet it's a citrus tree. वो लीमू का दरख्त है, हालांकि वो संतरे का दरख्त है। And they say this church, this denomination is bearing record of Christ. और लोग कहते हैं इस कलीसिया, इस तंजीम के अंदर मसीह की जिंदगी है। And got a false baptism, false witness of the word, trying to say that the power of God was only for the disciples. जबकि उन्होंने गलत बपतिस्मा लिया और कलाम की गलत गवाही पेश करते हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा की कुदरत सिर्फ शागिर्दों के लिए थी। Jesus himself said, "Go ye into all the world and preach the gospel to every branch that'll ever tree will ever bring forth, every branch that'll be in the tree." यीशु ने खुद कहा, सारी दुनिया में जाओ और हर शख्स के सामने अंजील की मुनादी करो, हर शाख के सामने जो कभी ये दरख्त लाएगा या कभी भी इस दरख्त पर लगेगी। And these signs shall follow the genuine branches. ये निशान हकीकी शाखों में जाहिर होंगे। Where as long as it's a tree, as long as it's putting forth branches to the end of the world. कब तक? जब तक ये दरख्त है, जब तक ये शाखें पैदा करता रहेगा, यानी दुनिया के आखिर तक। In my name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things, lay hands on the sick and they shall recover. वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। See the hour we're living? इस घड़ी को देखें जिसमें हम रह रहे हैं। See what Jesus said? देखें यीशु ने क्या कहा था। Remember, this is at the end time, not back under Wesley, back there. याद रखें, ये आखिरी वक्त है, ये वेस्ली या इससे पिछलों का वक्त नहीं है। Now at the end time this is to take place. अब इसे तो आखिरी वक्त में पूरा होना है। Now, watch the scriptures, let them testify. अब नविश्तों को देखें और ये गवाही देते हैं। Jesus said, search the scriptures, for in them you think or believe that you have eternal life, and they are the ones that testify of me. यीशु ने कहा, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि तुम समझते हो या ईमान रखते हो कि तुम्हें इसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। In other words, if this tree ever brings forth a branch, और दूसरे लफ्जों में, अगर ये दरख्त कभी शाख पैदा करेगा, I am the vine, the tree, ye are the branches. मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियां हो। He that believeth in me, the works that I do, shall he do also. St. John 14:12. जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। मुकद्दस यूहन्ना 14:12। Now, he that abideth in me, him that was in my root at the beginning. अब वो जो मुझ में कायम रहता है, वो जो इब्तदा ही से मेरी जड़ में मौजूद था। That's the reason Jesus was both the root and offspring of David. यही वजह है यीशु दोनों यानी दाऊद की असल और नस्ल था। He was before David, in David, and after David. Both root and offspring of David. वो दाऊद से पहले, दाऊद में और दाऊद के बाद भी था। वो दोनों दाऊद की जड़ भी है और नस्ल भी है। The morning star, the rose of Sharon, the lily of the valley, Alpha and Omega, Father, Son, and Holy Ghost. वो सुबह का रोशन सितारा, शारून का गुलाब, वादी का गुले सोसन, अल्फा और ओमेगा, बाप, बेटा और रुल कुश है। In him dwells the fullness of the Godhead bodily. अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। Both root and offspring of David. वो दाऊद की असलो नस्ल है। He that is the elected life, the predestinated life that's in me, and he is the Word. From the beginning. वो पहले से चुनी गई जिंदगी और पहले से मुकर्रर शुदा जिंदगी है। वो जो मुझ में है और वो कलाम है जो कि इब्तदा ही से है। When he comes forth,
He'll bear my fruit. St. John 14:12. जब वो जिंदगी आएगी तो वो मेरे लिए फल लाएगी। मुकद्दस यूहन्ना 14:12। But others will live by the same thing, call themselves Christians and believers. लेकिन दूसरे भी इसी चीज से जिंदा रहेंगे, वो भी अपने आप को मसीही और ईमानदार कहेंगे। Not all that saith, Lord, Lord, will enter in. ना कि वो सब जो मुझे ए खुदावंद कहते हैं दाखिल होंगे। Now, this is to take place and be manifested in the last days, when the mysteries of God should be finished, as we'll get to a little later. अब इस चीज को आखिरी दिनों में वाकया होना है और जाहिर होना है, जब खुदा के सब भेद मुकम्मल हो जाएंगे। ये बात हम थोड़ी देर बाद हासिल करेंगे। These trees, the true vine and false vine. ये दोनों दरख्त यानी हकीकी अंगूर और झूठा अंगूर। You heard me preach on that since from years ago. How they grown up together. ये दोनों किस तरह इकट्ठे परवरिश पाते हैं, आप कई सालों से मुझे इस पर मुनादी करते हुए सुन रहे हैं। Brought them in individuals and showed that from Cain and Abel,